three different what different cases, three different cases where the process yeah where but three different cases in a running state. Okay, then we have discussed something about scheduler. On scheduler we have discussed three different types of scheduler, like long-term scheduler, short-term scheduler, and middle-term scheduler. Fine. So next topic that we are going to discuss in a process is very important again, process control box, PCB. ठीक है, हमने पढ़ा था ना PCB. What is PCB? Stands for PCB basically stands for process control box. So what is process control box? As I already said, okay, the process is slightly different from a program. Okay, so whenever the program become process, so what happened? No doubt it will be in running state. Apart from that, it will have some extra features. Okay, like it will be have a program counters, it will be have a stack, it will be have a registers, it will be have a memory location, it will have some resources. Fine. So what actually do whenever a program process is created, suppose I created a process P1. So as I create a process P1, for that process, each process there will be a program counter is created or process control box is created. So what the basic need of process control box? Process control box will keep all the information related to the process. Process के related जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपका कहाँ स्टोर होगा? प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स पे स्टोर होगा. इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? व्हाट इज द रोल ऑफ Yes, sir. प्रोसेस Yes, sir. कंट्रोल? काम इतना ही है, जितना भी प्रोसेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स में स्टोर होगा. और जब भी आपका एक प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, उसके साथ एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स क्रिएट होगा. ठीक है. सो नाउ कैन एनीवन explain me what are the different fields? There are बहुत सारे फील्ड होते हैं. ठीक है. There are number of fields in process control box, but we will discuss few important fields that are related to your syllabus. Okay. तो फर्स्ट फील्ड जो होता है आपका, एक और चीज याद रखना, along with the process control box, whenever the process is created, along with the process control box, every process will have a PID. क्या बोलते हैं? PID. What is the PID stand for? Process ID. Okay, process ID. What the process ID? And this process ID will be unique for each process. ठीक है, which is uniquely identify each process in my operating system. बात समझ में? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारे प्रोसेस होते हैं ना, P1 to Pn, है कि नहीं? बहुत प्रोसेस होते हैं, थाउजेंड प्रोसेस. Now how to identify processes? Now these processes can be identified only with the help of PID बोलते हैं, process ID. फाइन. प्रोसेस आईडी बोलते हैं. और ये प्रोसेस आईडी हर एक प्रोसेस का यूनिक रहेगा. ठीक है, किसी भी प्रोसेस का ये सेम नहीं रहेगा. एंड हु विल जनरेट दिस प्रोसेस आईडी? द प्रोसेस आईडी इज जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द प्रोसेस आईडी? द प्रोसेस व्हिच इज हैविंग प्रोसेस आईडी 1. ओके, क्या है? किस प्रोसेस का आईडी 1 होगा? द प्रोसेस व्हिच इज फर्स्ट. नाउ the first program that is bootstrap बोलते हैं ना, bootstrap programming is having the process ID 1 because this is the first process which is loaded to the memory. Clear? Each process even having different process ID and they are unique. How they are generated? They are generated by the operating system. तो दो चीज याद रखना है.
जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होगा उसके साथ एक यूनिक प्रोसेस आईडी क्रिएट होगा और उसके साथ एक पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स भी क्रिएट होगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फील्ड्स ऑफ पीसीबी? पहला फील्ड जो होता है आपका बोलते हैं पॉइंटर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ पॉइंटर? नाउ इट विल कीप ट्रैक ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, पॉइंटर इट विल ट्रैक ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आपका कौन सा है? इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है। नाउ वी विल हैव समथिंग कॉल्ड प्रोसेस स्टेट। ओके, प्रोसेस स्टेट। मैं नाम बोलते जा रहा हूँ, आप इसको लिखते जाना, या आपके बुक में भी है। ठीक है, थोड़ा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो प्रोसेस स्टेट, सो व्हाट इज द प्रोसेस स्टेट स्टोर? इट विल स्टोर द करंट स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस का जो करंट स्टेट होगा, वेदर इट विल बी न्यू, running, ready, terminated or blocked, whatever the current state of a process, it is going to store. Along with that, there is a process number. Process number or process ID भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Process number and process ID. Now again, process number and ID are unique number which is uniquely identify the process among the different process available in my operating system. ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं, पीसी। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम काउंटर। सो व्हाट द प्रोग्राम काउंटर विल डू? प्रोग्राम काउंटर विल स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आपका आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सपोज देयर इज ए प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ टू लाइन, लाइक प्रोसेस है दो लाइन है। सपोज एक्स इक्वल टू y plus z and a equal to x plus y. ठीक है। Now what happened? Now this is the first instruction. Now what program counter will store? Now program counter will store address of this value. A value of a is stored in a program counter. That means process का जो next instruction होगा उसको वो store करेगा। ठीक है। Similarly, there are some registers are available. Okay, some registers are available. So you already know what is purpose of register. It is used for the purpose of register are used for store some values for computation. ठीक है। उसके अलावा आपका memory limits. Now we are having some field called memory limit. So what is memory limit to? It will store the upper bound and lower bound for the process. मेन मेमोरी में जब भी आपका स्टोर होगा ना प्रोसेस, suppose process start with the address 100 and the process end with the address 150. I will store the limit, memory limit will be stored. So it will store the starting address, ending address, and the limit will be stored. What the limit? Limit, suppose this is 50 KB. The process is 50 KB. So it will basically deal with how much memory is allocated for the process. Yeah. Similarly, CPU scheduling informations are stored. CPU scheduling, that means what type of scheduling algorithm should be used, whether first come, first serve, or priority basis, or round robin, or primitive or non-primitive basis. So whatever scheduling process we are using for this process, the scheduling algorithm are stored. Similarly, some input-output information or status. Okay, input-output status can be stored. What is input-output status? That means whether the process are waiting for some input-output functionalities or input-output bound event or bound. इसी अगर बताया ना, हर प्रोसेस का दो स्टेज होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोसेस होते हैं दो स्टेज, आइदर दे स्पेंड टाइम इन सीपीयू, okay, either they spend the entire time in CPU or they will spend entire time in input output event. Okay, now what will status will store whether the input output event is completed or whether it is waiting for that. Okay, and then some accounting informations are also stored. Accounting information also stored,
and there are many more. Then list of files also there, list of files that are using by the process. ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रोसेस के रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होता है, पीसीबी में स्टोर होता है, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स. नाउ दिस आर द सम एट्रीब्यूट और सम डिफरेंट क्या बोलेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फील्ड अबाउट द प्रोसेस. देयर आर मेनी मोर, बहुत सारे होते हैं. ठीक है, काफी सारे फील्ड होते हैं. ओके, काफी सारे फील्ड होते हैं. क्लियर. तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस स्टेट. फिर थोड़ा बहुत आपको प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के बारे में जानना है, आइडिया. देन शेड्यूलर्स के बारे में भी आइडिया आपको रखना है. क्लियर. इज इट क्लियर द प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स? एनी डाउट? यस. Yes, sir. Any doubt regarding process control box? Yes. Sir, input output Status. No. Input output status. Input output status है मतलब. हाँ पूछिए क्या डाउट है. हाँ सर, इसके बारे में मतलब अभी क्या बोले थे? हाँ, इनपुट आउटपुट स्टार्टर. कोई भी प्रोसेस हम लोग का होता है ना, वो उसका जो क्रिएशन से लेके डिलीशन तक जितना भी टाइम स्पेंड करता है, आइदर वो सीपीयू में रहेगा, आइदर दे आर रनिंग और they are waiting for some input output status or event. That means they are waiting for some file, okay, or they are waiting for some hardware resources like printer, ठीक है, और they are waiting for some software resources. है कि नहीं. एक टास्क को कंप्लीट करना है, एक टास्क में कंप्लीट करने में क्या होता है, कुछ कंप्यूटेशन रहता है लाइक x इक्वल टू a प्लस बी. नाउ a प्लस बी कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा. लेकिन कभी कभी बोलता हूँ रीड द file. Now this is not a CPU computation. Now it is a input output part. ठीक है. Now input output status क्या करेगा, आपका input output इवेंट को स्टोर करेगा. वेदर आपका प्रोसेस इनपुट आउटपुट ब्लॉक स्टेट में है, या फिर इनपुट आउटपुट स्टेट आपका खत्म हो गया है, या फिर वो इंटरप्ट आया है, ऑल रिलेटेड दैट. ओके, इनपुट आउटपुट रिलेटेड जितने भी चीजें है वो स्टोर होगा. यस. यस, गो ऑन. कोई डाउट है? यस. Okay, then so let's move on. So next important topic is process creation. Okay, आप लोग नोट्स लिखते हैं ना, टॉपिक के नाम लिखते रहो, ठीक है. Yes sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोसेस क्रिएशन. ठीक है, प्रोसेस क्रिएशन. ठीक है, हम लोग अभी क्या पर डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस कॉन्सेप्ट. प्रोसेस कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस क्रिएशन. नाउ प्रोसेस क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई प्रोसेस क्रिएशन वेरी इंपॉर्टेंट? किसी भी अगर एप्लीकेशन को हम लोग कंप्लीट करना है, ठीक है, सपोज दिस इज माय एप्लीकेशन वन. नाउ एनी एप्लीकेशन इज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस. एग्रीड. कोई भी एप्लीकेशन जो होगा वो सिंगल प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं. क्या होता है जनरली कॉन्सेप्ट, क्या होता है, टू कंप्लीट एन एप्लीकेशन आई स्टार्ट विथ वन parent process. Now this parent process has to create number of child process. Okay, now this parent creates the child, or this parent also create the child, or this child again create the one more child, or these parents may create the multiple child. Right? like function calling type का. अगर एक मेन फंक्शन को कंप्लीट करना है, मेन फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ए, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है बी, बी के अंदर सपोज एक और फंक्शन होता है सी. लाइक दैट अगर कोई एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, it does not depend upon single process. So we have to throughout the program, it may be a condition. We have to create number of child process from a parent process, or we have to create number of new process. ठीक है.
So what happened actually? So whenever we create a new process, okay, whenever we create a new process, then there are two possibility, है कि नहीं? अब दो पॉसिबिलिटी क्या है? जब भी हम लोग ये बात समझ में आया, चाहे न्यू प्रोसेस क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जो भी प्रोग्राम होगा कभी भी एक प्रोसेस पे डिपेंड नहीं होगा। हम लोग को वो एप्लीकेशन या प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मिडिल ऑफ द प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ता है। द न्यू प्रोसेस विच इज क्रिएटेड बेसिकली दे आर नोन एज चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, जब भी एक नया प्रोसेस क्रिएट होगा या चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, सपोज दिस इज माय पेरेंट प्रोसेस, नाउ सपोज दिस पेरेंट प्रोसेस इज क्रिएटेड a न्यू प्रोसेस, let me name as a C, which is called child process. Okay, then there is a two possibilities. Okay, there will be two possibility in terms of what? Execution. Execution के term में दो possibility है। पहला possibility क्या होगा? The first possibility is the parent will wait. The parent will wait until the child will complete his task. ओके, पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा? पेरेंट जो है वेट करेगा। नाउ पेरेंट इज डिपेंड अपॉन द चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट क्या हो रहा है ना, पेरेंट कंप्लीशन ऑफ पेरेंट मे बी डिपेंड अपॉन द चाइल्ड। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? द पेरेंट education of parent process will wait until the child process is completed its task. Understood? सेकेंड कंडीशन क्या होगा? सेकेंड केस क्या हो सकता है? द पेरेंट प्रोसेस एंड द चाइल्ड प्रोसेस will execute concurrently if both the process are independent. ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग बाद में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, डिपेंडेंट प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, if the process are dependent, then parent process will wait until the process C, child process, is completed. और second case क्या होगा? If the process is independent, then both the process P and C can run concurrently. Clear? Can run concurrently, well, sequentially. Okay, is it clear? These 2 points. These 2 points clear? Yes, sir. In terms of Yes, sir. execution बात की हम लोग, in terms of execution कैसे execute हो रहा है. Now in terms of address or memory, how the memories is there. In terms of address or memory, ठीक है, in terms of address और memory के बारे में ही बात करेंगे. Now again in terms of address और memory में भी दो चीज याद रखना है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज हम लोग फिर से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट प्रोसेस. अगर प्रोसेस डिपेंडेंट है तो पहले चाइल्ड कंप्लीट होगा फिर आपका पेरेंट. अगर प्रोसेस इंडिपेंडेंट है तो दोनों प्रोसेस कंकरेंटली रन कर सकते हैं. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, एड्रेस और मेमोरी में क्या बोल सकते हैं? नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड प्रोसेस इज exactly duplicate of parent process. So what do you mean by this? What do you mean by this? What do you mean by this? That this is very important. This is very important process creation. क्या बोल रहे हैं हम लोग? The child process is a duplicate of parent process. That means parent process पे जो भी कुछ होगा वो directly copy होगा. Copy होगा कहाँ आपका? Child process में. For example, suppose this is my parent code और parent process. ठीक है, और parent process में suppose मेरा जो कोड था वो लेट मी राइट आई एक वेरिएबल था. ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटफ एक स्टेटमेंट था. ओके, देन आई वाई एक वेरिएबल था. ठीक है, जब मैं एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करूंगा, ठीक है, जब भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करूंगा, now what is that? C is a duplicate of P. That means P में जो कुछ भी था, that will be copied exactly in a C. That means there will be a integer variable A in a C. There will be a printf statement.
fine, and there will be an integer variable y. Clear? If this point is clear, what I mean by duplicacy? Yes? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ना ये चीज बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो आप प्रोसेस क्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. What I said, child is a duplicate of P. That means parent process में जितने भी instruction होगा, that will be exactly copied to the child process. ठीक है? Second point क्या बोलते हैं? The child process has a program loaded into it. क्या बोले हम? The child process has a program loaded. That means the child process will also loaded to the main memory. Okay. That does not mean child process P जो parent आपका main memory में है और child आपका secondary memory में. Child will also be loaded to the what? To the main memory. Clear? Clear? This thing? Clear? So this is about process creation. So whenever I discuss process creation, that means any application. तो केस 2 फिर से बताइए ना. कौन सा वाला point? सर केस Child is load to main memory. मेन मेमोरी. मेन मेमोरी. अभी Yes. अभी क्या हुआ? P हम लोग का था. अब प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? C जो क्रिएट हुआ है वो हमेशा मेन मेमोरी में ही स्टोर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिए. तो व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? अगर प्रोसेस P हम लोग का वेट कर रहा है C के लिए, लेकिन अगर C जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, तब क्या होगा? C never will going to execute. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं विथ रेफरेंस टू मेमोरी. क्या बोले? पहला चीज क्या बोले? जो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा वो हमेशा कहाँ लोड होगा? हमेशा मेन मेमोरी में ही लोड होगा. दैट मीन्स इट शुड बी ऑलवेज इन रेडी स्टेट. फाइन, इट विल बी ऑलवेज इन रेडी स्टेट. सेकंड थिंग, इट इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस. ठीक है? कहने का मतलब, सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब है जो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो हमेशा रेडी स्टेट पे होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूट. बिकॉज व्हाट एग्जीक्यूट कैसे होगा? आइदर इट शुड बी एग्जीक्यूट बिफोर पेरेंट प्रोसेस और इट शुड बी एग्जीक्यूट कंकरेंटली, साइड बाय साथ में ही, सीक्वेंसली साथ में ही एग्जीक्यूट होना चाहिए. ऐसा में क्लियर? यस. यस सर. Now the questions come. अभी ये तो हो गया process creation. Now how to create a new process? Okay. Now how to create a new process? Can anyone say me? बता सकते हो how to create a new process? How to create a new process? Create a new process. कैसे create करेंगे? How to create a new process और sorry, who is created लिखा ना? How to create a new process. So both the question you have to answer. How to create, कैसे create करेंगे और कौन create करता है? How to create and who is creating? Who is creating in this process? Yes. First of all, who is creating? Either the user or operating system. कौन create करता है? Yes. Who is creating the new process? There is only two options. Either user can create or operating system. Who is responsible to create a new process? Yes. Operating system, sir. Yes. Operating system is only responsible to create a new process. हम लोग नहीं create कर पाएंगे. You can try to create a new process. You can write only command. ठीक है? We can only write a command, or basically we can say system calls. Okay, we will write only system calls. ठीक है? So first thing is clear. Who is creating? OS is creating. We are not able to Operating system. find good. Then how to create? कैसे create करेंगे? Sir, by process number. By process number. Now process number is something name to the process. ठीक है? अब एग्जाम्पल ऐसे हो गया, किसी भी बच्चे का
बच्चे का नाम दे रहे, प्रोसेस नंबर से क्या कर रहे हैं, किसी भी चाइल्ड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन है चाइल्ड को कैसे क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टम कॉल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल्स से करेंगे, ठीक है, सिस्टम कॉल्स। नाउ यूजर विल राइट द सिस्टम कॉल्स, ठीक है। और यूनिक्स में हम लोग यूज करते हैं फोक सिस्टम कॉल्स। यूनिक्स में अगर यूज करते हो आप, लाइनक्स में फोक सिस्टम कॉल, और विंडोज में क्रिएट प्रोसेस बोल के एक फंक्शन है, क्रिएट प्रोसेस, ठीक है। याद रखना ये दो चीज, क्या याद रखना आप लोग, विंडोज में कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल, और लाइनक्स में यूज कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, फोक सिस्टम कॉल बोलते हैं। Clear? Now this is fork system calls are basically used to create a process, or in case of Windows we use create system call, ठीक है। तो यहाँ पर एक 3 पॉइंट आप लोग लिखना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मिटा दे रहे हैं अगर लिखे हो तो जब भी आप फोक सिस्टम कॉल यूज करेंगे पेरेंट प्रोसेस में, जब भी हम लोग फोक सिस्टम कॉल यूज करते हैं, तो अभी यहाँ पर सपोज, नाउ लेट मी राइट, सपोज दिस इज माय पेरेंट प्रोसेस का ब्लॉक था, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस का ब्लॉक था p, नाउ सपोज देयर इज अ वेरिएबल int a, नाउ सपोज आई यूज, यहाँ पर क्या यूज किए, फोक सिस्टम कॉल, क्या यूज किए, फोक, ठीक है। नाउ जब भी हम लोग फोक सिस्टम कॉल पेरेंट में यूज किए, व्हाट दैट इज मीन, नाउ वी आर क्रिएटिंग ए चाइल्ड प्रोसेस। इज इट क्लियर दिस पॉइंट, हाउ डू क्रिएट, कभी भी हम लोग अगर पेरेंट में या किसी भी प्रोसेस में फोक को यूज करेंगे, फोक को यूज करने मतलब वी आर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। सो व्हेनेवर यू क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस, देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फोक। नाउ फोक इज नथिंग बट it is a system call to create a new process which take no argument. What is the argument? No argument type, ठीक है। and what is the return type here? Return type will be PID। दो चीजें याद रखना आप फोक सिस्टम कॉल में। पहला चीज क्या है, ये है आपका प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट क्या होता है, नो आर्गुमेंट, ठीक है, नो आर्गुमेंट। एंड व्हाट विल द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विल बी PID, ठीक है, प्रोसेस आईडी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर PID के रिलेटेड हम लोग 3 केसेस स्टडी करेंगे। अगर हम लोग का PID रिटर्न, जो PID रिटर्न किया है वो नेगेटिव नंबर है, क्या है, नेगेटिव, दैट व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, the process is not created, the process is not created। is it clear this point? ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। फोक सिस्टम कॉल जब भी यूज कर रहे हैं तो न्यू प्रोसेस क्रिएट होगा, जब भी प्रोसेस क्रिएट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा। तो वहां पर 3 चीजें रिटर्न कर सकता है। अगर नेगेटिव नंबर रिटर्न किया, दैट मींस द प्रोसेस इज नॉट क्रिएटेड, Process not created. okay। if it is returning process positive number, ठीक है, that means yes, क्या होगा, Process is created. process is created and is returning the process ID of child process to parent process, ठीक है। क्या कर रहा है वो, चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस आईडी रिटर्न किया है किसको, पेरेंट प्रोसेस में। और इन जनरल अगर पॉजिटिव आया तो आपको याद रखना है हम लोग कहाँ पर है, पेरेंट प्रोसेस आईडी में है। बात समझ में, अगर वो पॉजिटिव रिटर्न किया, अगर ये फोक पॉजिटिव रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है, चाइल्ड प्रोसेस का प्रोसेस आईडी रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, पेरेंट को रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, पेरेंट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और हम लोग कहाँ पर है, पेरेंट प्रोसेस में है। अगर प्रोसेस आईडी 0 है, अगर प्रोसेस आईडी वो रिटर्न किया 0, ठीक है, अगर प्रोसेस आईडी वो रिटर्न किया 0, तो व्हाट डिड इट मीन, द न्यूली प्रोसेस आईडी इज क्रिएटेड एंड वी आर एट चाइल्ड प्रोसेस, तो व्हाट इज रीजन, देखो रीजन क्या है, अब मैं बताता हूँ रीजन क्या है।
now when I create, suppose, okay, so let me suppose this is my try to understand carefully here. So suppose this is my parent process, इसे fork call, INTA fork है, suppose इसके बाद एक printf statement है हम लोग का, fine, printf statement है, now उसके बाद suppose एक और INTY है, ठीक है। जब मैं आपका चाइल्ड क्रिएट करूंगा, और मुझे बताना, जब चाइल्ड क्रिएट करूंगा, चाइल्ड के बॉक्स में क्या क्या रहेगा? यस, कोई जल्दी से बताओ, क्या INTA रहेगा? चाइल्ड क्रिएट, यस, गुड। क्या फोक रहेगा? Yes, sir. यस, गुड। क्या प्रिंटफ रहेगा? Yes, sir. यस, sir. गुड। क्या INTY रहेगा? Yes, sir. यस। Yes, sir. क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी, विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी क्या पढ़ा था? हाँ, जो प्रोसेस पेस्ट हो जाएगा कंटेंट हाँ, पेरेंट प्रोसेस का। हाँ, जितने भी है वो पेस्ट हो जाएगा, फाइन, पेस्ट हो क्लियर जाएगा। क्लियर। Yes, sir. अब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट सिंपल, अगर नेगेटिव रिटर्न कर रहा है, सपोज ये अब उसको कॉल किया हम लोग, सपोज ये नेगेटिव रिटर्न किया, मतलब चाइल्ड क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है, चाइल्ड तो क्रिएट ही नहीं हुआ, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर सपोज अपने इसका प्रोसेस ID दे रहा हूँ, सपोज PID हम लोग दे रहे हैं इसका 100, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस का PID है कितना है? 100, ठीक है। सपोज ये 100, ये फंक्शन को कॉल किया मैं, अब वो क्या रिटर्न कर रहा है? सपोज 100 रिटर्न कर रहा है, तो 100 रिटर्न कर रहा है, तब हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? प्रोसेस क्रिएट हो गया है, और हम लोग का कंट्रोल कहाँ पर अभी है? हम लोग का कंट्रोल है यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नाउ वी आर कंफ्यूज, नाउ दिस इज आल्सो सेम, दिस इज आल्सो सेम, एग्जैक्टली लग रहा है कि नहीं? both are exactly, no, both are copy paste, both are same, है कि नहीं? Yes, But sir. now you have to decide on which process particular हम लोग प्रोसेस पेरेंट पे है या फिर हम लोग करेंटली चाइल्ड में है, कैसे डिसाइड करेंगे, है कि नहीं? क्या हम लोग पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर हम लोग चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? बात समझना, पेरेंट जब था, ठीक है, जब हम लोग चाइल्ड क्रिएट किए, अब एजुकेशन कैसे होगा? आइदर पहले चाइल्ड होगा या फिर पेरेंट, या फिर दोनों पैरेलल ही होगा, है कि नहीं? तो हमको पता करना है, क्या पता करना है? हम लोग किस प्रोसेस में, सपोज मैं बोलूंगा चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करो, तो पहले पता करना ना वो चाइल्ड प्रोसेस में है कि नहीं, यही चीज है। अगर ये सिस्टम कॉल पॉजिटिव नंबर को रिटर्न किया, पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 100 रिटर्न करेगा, हमेशा पॉजिटिव मतलब प्रोसेस ID ऑफ चाइल्ड रिटर्न करेगा, तो दैट मींस दैट वी आर एट, कहां पर है? The process is created and we are at parent process. If it return 0, अगर वो रिटर्न 0 करेगा, अब ये फंक्शन कॉल क्या किया? ये फॉक क्या किया? 0 रिटर्न किया, सपोज रिटर्न 0, दैट मीन्स द प्रोसेस इज क्रिएटेड। नाउ हम लोग कहां पर है? हम लोग कहां पर है? चाइल्ड प्रोसेस में। Child process. बात समझ में आया अभी? अगर वो पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, दैट मीन्स वो प्रोसेस का ID रिटर्न करेगा, चाइल्ड प्रोसेस का ID, और कंट्रोल कहां पे रहेगा आपका? पेरेंट प्रोसेस में रहेगा, पेरेंट प्रोसेस में। ठीक है। अगर वो 0 रिटर्न किया, ये फंक्शन कॉल किए, अगर वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, तो हम लोग का कंट्रोल कहां पे रहेगा? ना प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड वी आर एट चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये तीन चीजें, फॉक सिस्टम कॉल है, नो आर्गुमेंट, एंड रिटर्न क्या करेगा? PID में 3 केस याद रखना, अगर नेगेटिव तो प्रोसेस क्रिएट ही नहीं हुआ, अगर पॉजिटिव प्रोसेस क्रिएट हुआ है और हम लोग पेरेंट प्रोसेस में है करेंटली, अगर 0 रिटर्न किया तो प्रोसेस क्रिएट हुआ है और हम लोग चाइल्ड प्रोसेस में है। तो आप लोग एक काम करना, होमवर्क आज, फोक सिस्टम कॉल का डेफिनेशन देखना, फोक सिस्टम कॉल का डेफिनेशन देखना, वहां पर देखने से आपको पता चलेगा कैसे प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वो एक सपोज 1 लाइन का है, 1 पेज का प्रोग्राम है वो, ठीक है। नाउ दिस इज अ प्रोग्राम, लेट मी फिनिश दिस फास्ट, 1 minute वी आर हैविंग। So this is a program. Now int main, I am taking a variable p. Now my system call क्या किया? fork को कॉल किया, now fork will be return integer type variable, इसलिए हम लोग p में स्टोर कर रहे हैं। Now tell me if p is less than 0, printf क्या प्रिंट करेगा?
So what will be a blank statement here? देखो यहाँ पर INTP, हाँ, we are calling fork function. P में क्या स्टोर हो रहा है? fork function जो रिटर्न करेगा, either it will return negative number